Morning, dear students. How are you? Fine. So, bete, plus two students should be more serious than students of any class because this is your last school age class. Last school age class. So after that, you will be entering professional courses. Today we will discuss the topic equipotential surface. First of all, I will throw light on basic points. Later, we will pick up the assignment. Later. Okay? First of all, everybody should be ready with the notebook and pen. Remember, some students actually sometimes think, sir, please explain the things we will read from the books. These students commit one mistake. Remember, when teacher explains, he explains this long point of the book in many words. The book, when you first thing you don't read the books regularly. Second, if you read the books, there are a lot of distractions in today's age. Third thing, book takes too many lines to explain the small thing. It is very much time consuming. So teacher who is very much experienced tells the huge things in minimum words. So everybody should be ready with the notebook and pen. Okay. Equal potential, sir. शाबाश बेटे equipotential surface. But first of all, you see, this word is made by mixing three words: equal plus potential plus surface. Equal plus potential plus surface. So these three words says, suppose there is some surface, and on this surface, the different points, whether it is point A, or it is point B, or it is point C, or it is point D, or any other point. The electric potential of every point is at same volt level. That means teacher is saying potential of A, potential of B, potential of C, potential of D all equal, and any other point also. If this condition is met, then this yellow surface will be called as an equipotential surface. Equipotential surface, meaning a surface whose every point is at the same electric potential. The question arises, sir, can you give an example of it? Yes, why not? You see, what the teacher told you, if there is a point charge at part R, there is a point P. What is the potential at? You all know that this formula told by you was potential at P is equal to Coulomb's constant, mean charge, and divided by gap of the observatory point P from the main charge, that is R. And Coulomb's constant value should be known to you. How much? 1 upon 4 pi epsilon naught
which is equal to 9 into 10 to power 9 Newton meter square per coulomb square for vacuum for SI units. Okay. So this formula I told you for the potential. By taking benefit of this formula, I will draw the equipotential surface. Student says, sir, how? Look here. Then I say, let's take a point charge Q and place it at the center of certain sphere such that it is at the center and sphere is around it, and at every point, you know, the radius will be same. So if I say you, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, how much away they are with respect to center where the point charge is placed? Then your answer is, sir, as it is a sphere and Q charge is placed at the center of sphere, so every different point is at the same distance, that is radius apart. Then I say, okay, potential of A is how much? Potential of A. Student says, yeah, this is the formula. K Q upon R. Potential of B. So potential of B, Coulomb's constant, main charge, how much away the B point, that is radius distance apart, or same formula you see. Potential C, KQ by R, potential D, KQ by R. Now student says, sir, these four are equal. So that means, it means the area which you are mentioning with the white line, that is an equipotential area. I will say yes, equipotential area, because potential of all the points according to the basic formula comes out to be same. That is why this area is picked by me and shown it here. A, B, C, D points on the equipotential, if they are, then potential will be same. Got it? Now, another student raises the objection. Sir, wait. You cannot say them as equipotential. I said, why? Sir, directions are different, na? Formulas are same. Directions are different. Then I satisfy. Wait. You should wait, not me. Reason? Potential is a vector physical quantity. It is wrong. You are considering it wrong. Potential, it is a scalar physical quantity. It does not have any direction. Electric field was having different. Electric field is a vector quantity, not potential. So, had I calculated electric field here, that would have been having different directions, because electric field has direction as well as magnitude. Potential has only magnitude, not direction. So therefore, even if the points A, B, C, D are away in different directions, potential will be same. Hence, this surface, whole surface of the sphere will be an equipotential surface. Got it? This is the basic definition of equipotential surface. Have you understood it? If yes, raise your hand. Right hand. Lazy student, बेटा. If there is still doubt, raise your left hand. अगर समझ आ गया राइट हैंड डाउन. शाबाश, बहुत अच्छी. मैं इतनी दूर बैठा हूं, आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि पंजाब के इतने दूर बैठे हुए मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हो पा रहा हूं. गुड जॉब. लेट्स प्रोसीड फर्दर. Now we have to tell the properties of equipotential surface. Properties of equipotential surface. Okay, listen very attentively. I will tell very fast. Number one, if this is the equipotential surface, electric field direction
is always perpendicular from it. That is why I have mentioned 90 degree. Electric field direction is perpendicular to it. Number two equipotential surfaces, as I have shown in the diagram, can never cut each other, can never intersect each other. Two equipotential surfaces, equipotential surface 1, equipotential surface 2, as this shown figure, never possible, never possible. If somebody asks you why never possible, then you will write the answer this way. You will say in the examination, at the point of intersection of the two surfaces, one line will be perpendicular to this side and other line will be perpendicular to this surface. So therefore, at the single point, electric field is shown two different directions. Shown two different directions, but it is a vector physical quantity. As per basic definition of a vector has only one direction at a single point, specific direction. So a vector quantity cannot have two different directions at the same point. So therefore, this figure is wrong, and its base figure that two equipotential surfaces are shown cutting each other is also wrong. Hence, we say two equipotential surfaces never cut each other. Third thing, if I have shown these surfaces, they are parallel to each other, and here I have shown the point charge. Okay, so this is the equipotential surface. This is another equipotential surface parallel to it, another equipotential surface. But you know, all the equipotential surfaces are at different distances, R1, R2, R3. Their distances are different. So remember, potential of EPS triple dash is lesser because it is maximum away from the charge. Potential of EPS double dash lesser than potential of EPS dash. Although all the three are equipotential surfaces, but farther is the surface from the given charge, lesser will be its potential at every point. For example, you can say, sir, every that point which you are mentioning in the yellow color may be at 3 volt, and every that point which I am mentioning with the white color may be at 5 volt. Every that color which I am mentioning with the pink color, that is at 10 volt because it is closest. Okay, its each point is at is 3 volt. Its each point is say at 5 volt. Each point say at 9 volt. So from here you understood that equipotential surfaces are parallel to each other, but further they are lesser the potential. Third point, next point. On an equipotential surface, if a test charge has to move from point A to B, then how much work is done? Work done will be 0 joule. Work done will be 0 joule. How can I say that? Because, your attention, because work upon test charge as per definition is equal to potential difference between A and B. Potential difference between A and B. Okay, another thing. Therefore, charge work will be equal to test charge. Test charge is always very less than main charge.
delta V is change. Potential of A minus potential of B. Further, then you will say, sir, do you know you have said it equipotential surface, therefore potential of A and B should be equal because they are the points on the same surface. I said yes, both should be equal. Let's call it V. So you will call it V minus V. Work done comes out to be 0. Okay. So always remember, in moving a test charge over the equipotential surface is always 0. All the students should commit to the memory which formula? This formula. Never forget this formula. Okay? Never forget this. Remember, in this whole discussion, I have told capital Q as the main charge, which is very larger, and Q naught I have called as test charge, which is comparatively very less. Very less. Okay? ये तो क्या था हमारा बेटे? थ्योरी ऑन इक्विपोटेंशियल स्टेप. देखिए तो एक बार आपको पुरानी बात याद है कि हमने ये पढ़ा था, सब याद है आपको कैसे कैसे टीचर ने इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, फिर आपको टीचर ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बताई. अब हमने करना है बेटे न्यूमेरिकल असाइनमेंट. प्लीज असाइनमेंट. First question, what is the work done in moving a charge over an equipotential surface and why? 0. Do you know the answer? Yes or no, beta? Do you know the answer or not? Yes. Okay, because by chance the last point we discussed was the same. Okay. Second question, angle between the electric field lines and equipotential surface. 60 degrees, because teacher has told here this is equipotential surface. Electric lines of force which the electric field direction are always perpendicular. So question 1 is done. Questions are done. Third question, why are equipotential surfaces always perpendicular to field lines? Why of 90 degrees is asked. Why this angle is 90 degrees? Let's discuss that. Why this angle is 90 degree? Why not other than 90? Okay. So listen carefully, better. Listen carefully, very attentively. So you will say, let's take the main charge Q, which is placed on the surface of the sphere, at the center of sphere, sorry, at the center of sphere, and some area is selected on the surface of sphere, which is called equipotential surface. And if on that surface at brown point, if I want to know the direction of electric field, what is the procedure? Answer, listen, answer. At any point, if you want to know the direction of electric field, assume that unit positive charge is placed and let free. तो इस ब्राउन पॉइंट के ऊपर आपने एक कूलम का यूनिट चार्ज ऐसे रखा और छोड़ दिया. Now, whatever will be the direction of that unit positive charge after it is let free to move,
that direction of motion of the unit positive charge will be the direction of electric field. This is the method how to find direction of electric field at a point. So, just suppose that test charge is Q naught. The moment I place the test charge Q naught here and leave it, what will happen? The main charge will repel the test charge very abruptly. Test charge experience the repulsive force, and the direction towards which the test charge moves is the direction of electric field. Why this test charge experience repulsion? According to Coulomb's law of repulsion. And always remember, we noticed in the Coulomb's law, if there are two charges, the force between them always acts the joining line. And that force which acts between the joining line of two interacting bodies is called as central force. पता नहीं आपको पता है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रल फोर्स. एक +1 में पढ़ते थे फोर्स बिटवीन मासेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वाज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है? जो दो चीजें इंटरएक्ट कर रही हैं उनको ज्वाइन करनी हुई लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए उस तरफ ही लाई करे फोर्सेस. अब देखो, टेस्ट चार्ज और मेन चार्ज को ज्वाइन करती हुई लाइन टीचर ने पिंक कलर वाली दिखाई, तो उसी के अलोंग ये निकाला. गॉट इट? So therefore it will be along radius. और रेडियस जो होता है वो कभी भी स्फीयर के सरफेस को जब कट करके बाहर आता है तो 90 डिग्री से ही कट करके आता है. मैथ की प्रॉपर्टी, radius is always perpendicularly out from the surface of the sphere, and this surface is acting as equipotential surface here, and this direction is representing the electric field direction. So mixing the math and physics point, we can easily say electric field is perpendicular to equipotential surface always. ओके. तो शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे? पेपर में इतना लंबा चौड़ा तो समझाने में है, पेपर में थोड़ी इतना लंबा लिखोगे, वहां टाइम ही नहीं है इतना. आप बोलोगे स्फीयर के सेंटर पे अगर मेन चार्ज रख दिया जाए तो स्फीयर पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है. नंबर 1. नंबर 2, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के और उसको फ्री छोड़ा जाता है. जिधर को वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है. नंबर 2. तीसरा पॉइंट ये है कि स्फीयर का सरफेस रेडियस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा. मैथ लैंग्वेज, आप कई बच्चों को रेडियस की वैल्यू तो पता होती है कि ये रेडियस है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रेडियस को एक वेक्टर लिया जाता है और उस वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड ली जाती है. मैग्नीट्यूड तो इतना लिया जाता है ओ से लेकर बी पॉइंट तक, ओ से लेकर बी तक मैग्नीट्यूड तो इतना, लेकिन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. अंदर को नहीं होता रेडियस कभी भी. तो रेडियली आउटवर्ड हो गया बेटे. तो यहां से साफ ही पता लगता है मैथ का दिस पॉइंट हेल्प अस टू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल. तो आप कह सकते हो सर ये जो सरफेस आपने यहाँ दिखाया क्या आप मान सकते हो कि यही सरफेस है? बिल्कुल. ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया क्या हम मान सकते हैं यही वाला आपने दिखाया? बिल्कुल. गॉट इट? कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड. अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बेटे. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4. Two equipotential surfaces are 4 millimeter apart. The potential difference between them is 2 volt. Calculate electric field. Fourth question बच्चे. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लो सभी बच्चे. रीड योरसेल्फ.
नाउ सी द क्वेश्चन। बेटे क्या बताया उसने? Two equipotential surfaces are 4 millimeter apart. I mean, from this point to this point, what is the gap? This gap is given as 4 millimeter. In SI unit, it should be written as this much meter. And he says potential difference between them is 2 volt. Its potential. Suppose it is at V1 potential. It is at V2 potential. So difference of the two is given as 2 volt to us. And you know, V2 is higher because it is closer to the main charge. So electric field is always from higher potential to lower potential. And he is asking how much this electric field is. How much is this left? Is there any student in the class who can solve it? Two equipotential surfaces, gap given, difference given, potential difference, electric field also. Anybody? नहीं? देखो बेटे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नोट कर लो ये बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये लैंग्वेज भी लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। So therefore in our question it is potential difference upon gap। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो माइनस छोड़ सकते हैं। So this is 2 volt divided by 4 into 10 to minus 3. It becomes 2000 by 4. It becomes 500 Newton per coulomb. Unit of electric field is what? Newton per coulomb। मतलब समझदार बच्चे ने अभी इसी वक्त इसको रट्टा मार लिया होगा बेटे। और मैं बताना चाहूंगा एनसीईआरटी की बुक में इसका प्रूफ भी है, और ये 3 नंबर का प्रूफ आता है बोर्ड के एग्जाम में। 3 नंबर का पढ़ लेना एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 5। Question 5. Two positive charges 12 and 8 microcoulomb respectively are placed 10 centimeter apart in air. The work done to bring the charge them 4 centimeter closer is। शाबाश बच्चे, आपसे भी थोड़ा बहुत मेरे को पूछना होगा, सारा मैं ही क्यों बताई जाऊं। एक बच्चा है अनुरूप, मेडिकल में अनुरूप। मेडिकल में हु इज अनुरूप? रेज योर हैंड। अनुरूप, हाँ बच्चे प्लीज कम ऑन द माइक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटे, वो वर्क डन पे है। तो आपको वर्क डन का फार्मूला आता है कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से? बच्चा चलो बैठो, कोई बात नहीं। नॉन मेडिकल में एक बच्चा है गुरलीन। गुरलीन प्लीज कम ऑन द माइक। नॉन मेडिकल में कोई है नहीं? हाँ गुरलीन आए नहीं तो बच्चा आ जाओ बेटे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अपनी शर्म नहीं करनी। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो टीचर बता देगा। जस्ट हमने एक कोशिश करनी होती है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे को आता होता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो जब टीचर नाम लेके बुलाता है ना माइक पे, सो उसका एक ही कारण होता है कि हम अपने बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज दिखा है, और कोई कारण नहीं। हाँ बेटे, आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी या वर्क का फार्मूला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? बताओ।
इसका मतलब है टीचर ने जज कर लिया कि क्लास में हल्का सा पहले बेस बनाना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनो बेटे, 4 फार्मूले मैं अपने आप बच्चों को बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग म्यूचुअली। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले बेस बनाएं। पहला क्वेश्चन, पहला, इफ देयर इज ए टेस्ट चार्ज, there is a main charge and both of them are r distance apart. R is the gap between the center. Then there is a formula of the force between the charges. Coulomb's constant, first charge, second charge, gap between the both charges and square. This is the first formula. Formula for force. Second thing, if I am talking about second formula, there is a test charge Q naught, another main charge Q. They both charges make a system of charges. What is the electrostatic potential energy? Electrostatic potential energy between the two charges. The answer is K, test charge, first charge, second charge divided by gap. रिमेंबर, आर का स्क्वायर नहीं करना। इसको टीचर ने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं यार बाद में मेरे को कोई ना कोई दे ही देगा लिख के। किसने देना है? मैंने तो देना नहीं है लिख के हाथ से। किताबों में आपको मिलना नहीं है कंपैरिजन, कंपैरिजन किताबों में मिलना नहीं है। मैंने लिख के देना नहीं है हाथ से। पेपर कैसे देना है? पेपर कैसे देना अपने फाइनल? कॉपी को पढ़ के, कॉपी पे आप लिख नहीं रहे, बाकी आपकी मर्जी है भाई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, if this is the main charge, this is the test charge and r distance apart, I want to calculate electric field at P point. What is the P point? Where test charge is placed. What is the electric field strength? Then formula is K main charge और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये थर्ड फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तीनों फार्मूले कंफ्यूजिंग है आपस में। फोर्थ फार्मूला, फोर्थ फार्मूला बेटे, इफ दिस इज योर मेन चार्ज, दिस इज योर टेस्ट चार्ज एंड द गैप बिटवीन द टू इज r and this point is say P point, and I want to know potential at P is equal to question mark. Potential, यहाँ U के मामले में क्या बोला टीचर ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ क्या बोला टीचर ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये हमेशा पॉइंट पे होता है, और ये कभी भी पॉइंट पे नहीं होती, ये सिस्टम की होती है। सिस्टम, ग्रुप ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं इसको। तो बेटे इसमें क्या, फिर इसका फार्मूला क्या? पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। देख लो पांचों कंफ्यूजिंग है, चारों, सॉरी चारों कंफ्यूजिंग है। अब बच्चा बोलता है सर एक बात पूछूं आपसे, इनमें से वेक्टर कौन से हैं? मैं कहूंगा बेटे जिनके ऊपर मैंने एरो लगा दिया और मैग्नीट्यूड लगा दिया वो वेक्टर है। वेक्टर, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बेटे है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इनको कभी ऐड करना पड़े तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी भी स्केलर होती है और पोटेंशियल भी स्केलर होता है। इनको डायरेक्ट ऐड करा जाता है, जैसे आप सिंपल मैथ ऐड करते हो अलजेब्रे का। जो मैथ आपने 10th क्लास तक पढ़ा था उसको यूज कर सकते हो आप। इक वाले दोनों फार्मूले यूज करिए, पर एक बात याद रखना, एनर्जी में एनर्जी ही ऐड होएगी, कभी बाकी नहीं ऐड हो सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐड होएगा, बाकी नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि यूनिट अलग अलग है।
और इसका मतलब है अगर पेपर में डाटा पहचानना हो तो आपको इनकी यूनिट याद होनी चाहिए बच्चे। यूनिट तो टीचर आपको लिख देते हैं यूनिट क्या है। तो देखो इसका यूनिट होता है न्यूटन फोर्स का। और जब यूनिट के रूप में साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है तो एन छोटा डालना होता है, कैपिटल नहीं डालना होता। और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर क्यूलम। न्यूटन पर क्यूलम। और वोल्ट का यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट। और एक बात याद रखना बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और भी ऐसा यूनिट होता है, वो भी याद रखना है, वोल्ट पर मीटर। दोनों में से एक लिखना है लेकिन। तो ये तीसरी बात है। और एक बात और याद रखनी है बच्चे कि वर्क की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की। अगर दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो, जैसे एनर्जी की भी जूल होगी वर्क की भी जूल हो, तो उनके फॉर्मूले आपस में इक्वेटेबल हो सकते हैं। रिमेंबर, आप इमरजेंसी में इसको वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। वर्क एंड एनर्जी हैज सेम यूनिट्स। तो कोई बच्चा बोले सर अगर दो चीजों की सेम यूनिट्स हो तो उनके फार्मूले इक्वल रखे जा सकते हैं। रखे तो जा सकते हैं लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है। वो कौन सी? जिन दो फार्मूलों को आप रखना चाहते हो बराबर करके, उन दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। या तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए या स्केलर होनी चाहिए। अब एनर्जी को तो टीचर स्केलर कह ही चुका, और वर्क भी आपने +1 में पढ़ा था स्केलर ही होता है, और दोनों की यूनिट जूल है। तो इमरजेंसी में इनके फार्मूले इक्वेट किए जा सकते हैं। तो ये लिख लो कहीं ना कहीं, द फार्मूला ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी इक्वेटेड। राइट डाउन बच्चे, राइट डाउन, कहीं नहीं मिलना किताबों में लिखा हुआ। द फार्मूला ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, the formula of two different physical quantities can be equated if they have same nature and same SI units. Same nature and same SI units. लो बेटे, अब मैंने अपने बच्चों का बेस बना दिया। जब दो बच्चों को मैंने बुलाया था ना क्लास में आके माइक पर, तो मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि ये बताए कोई बच्चे। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 5 में सॉरी, ये वाला चार्ज जो है ना Q1, वो है हमारा 12 माइक्रोक्यूलम। 12 माइक्रोक्यूलम जानते हो कितना होएगा ऐसे यूनिट में? 12 इंटू 10⁻⁶ क्यूलम, क्योंकि माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। और दूसरा चार्ज बच्चे उसने जो बोला हुआ है ये वाला, वो है 8 माइक्रोक्यूलम। 8 ही है ना? यस, 8 माइक्रो के हमने दूसरे बना दिए, क्यूलम हो गया। ठीक है, और इन दोनों में गैप कितना है? आर की वैल्यू शुरू में कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है, ध्यान से सुनना, द वर्क डन टू ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। इनको पहले के मुकाबले 4 सेंटीमीटर क्लोजर लेकर आना है। ये मतलब नहीं है इसको, इसका मतलब द वर्क डन टू ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। 4 सेंटीमीटर क्लोजर मतलब ये
इसको रख दिया नई पोजीशन पे, इसको रख दिया नई पोजीशन पे, और ये दोनों का गैप अब 4 सेंटीमीटर हो गया, आर डैश। ओके, एक बात यहां मैं बताना चाहता हूं, अगर ये ऐसे लिखा होता, द वर्क डन टू ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा होता, द वर्क डन टू ब्रिंग देम क्लोजर बाय 4 सेंटीमीटर, क्लोजर बाय 4 सेंटीमीटर, तब आपने 10 में से 4 को माइनस करके ये गैप को 6 लेना था, फिर 6 क्लोजर बाय 4 सेंटीमीटर अगर ऐसे लिखा होता। लेकिन उसने तो क्लोजर 4 सेंटीमीटर पे लेकर आ गया 2 इस क्वेश्चन में हमारे भी। ओके, अब बच्चे जानते हो इसमें हमें कहता है ऐसा करने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन। ध्यान से सुना, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहली सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ये, फर्स्ट सिचुएशन में के Q1 Q2 अपॉन आर, यही फार्मूला पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। दूसरी सिचुएशन में एनर्जी है U डैश बोल देते हैं इसको, के Q1 Q2 अपॉन आर डैश, गॉट इट। तीसरी बात बच्चे, अब बच्चे को मैं बताना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि गौर से देखो आप, ये आपका U ग्रेटर है और U डैश लेसर है, भाई बताओ बाकी की एनर्जी कहां चलेगी। तो हम कहेंगे भाई जो आपकी ओरिजिनल एनर्जी थी उसमें से इतनी एनर्जी तो बची हुई है, और बाकी की एनर्जी वर्क डन में कहा कंज्यूम होगी, क्योंकि हम इनको क्लोजर लेकर आए हैं वर्क डन में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब वर्क डन कैलकुलेट करना है, यहां पर ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू यू, इसको इधर लो, माइनस यू डैश। तो जब मैं u माइनस यू डैश लिखूंगा, इन दोनों के फार्मूले पुट करूंगा, देखो u का यहां पुट करूंगा, u डैश का यहां पुट करूंगा, तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, k Q1 Q2 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन बेटे, अच्छा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करना चाहिए था हमें बेटे। चलो चलो नेगेटिव आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये आ गया अपना, सिर्फ अलजेब्रिक साइन का फर्क आएगा और कुछ नहीं। तो अगर उसको कर ही दें, देखो इसको हम, इसको थोड़ा सा हम ना ऐसे करते हैं, फिर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसका अलजेब्रिक साइन चेंज कर ही देता हूँ, चलो फिर गड़बड़ हो जाएगी वरना आपको। तो आप ऐसे कहोगे, देखो ऐसे कहोगे, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो जब इसको आप पुट करा, लगाना वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन अपने, के Q1 Q2 कॉमन आया, 1/r dash minus 1/r. Let's put the data. Coulomb's constant 9 into 10 to 9. Q1 वो पड़ा 12 into 10 to minus 6. Q2 वो पड़ा 8 into 10 to minus 6. और यहाँ पर LCM 1/r dash मतलब ये पड़ा 1/4 सेंटीमीटर, मत कर देना, ऐसा ही यूनिट में सॉल्व करना है, मीटर, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, अब ये मीटर बन गया, माइनस 100/10, ये सेंटीमीटर के मीटर बना दिया हमने। अब बेटे बाकी तुमने खुद सॉल्व कर, यू कैन डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ, ठीक है। मैं टाइम नहीं यहां लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, 6 पे, a positive particle of charge 1 coulomb accelerates in a uniform electric field इतना, the particle starts from rest on an equipotential plane of 50 volt. After a second, the particle is on the equipotential surface of this volt. Determine the distance traveled by the particle. Okay, question number 6. 6 क्वेश्चन पे स्टार लगा लो बेटे,
अगर मैंने पेपर में डालना होता फाइनल पेपर में तो 6th डालता। इसका मीनिंग समझाता हूँ सारे बच्चों को, ध्यान से सुनो। शाबाश, मेरे को बताना पड़ेगा थोड़ा, आपका कमजोर है बेस। देखो बेटे, टेस्ट चार्ज कितना है, 1 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 वोल्ट/मीटर। गॉट इट। इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 कितना है, 50 वोल्ट। इक्विपोटेंशियल, उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2 कितना है, 10 वोल्ट। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, चार्ज, क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस बताना। और ये भी बताया हुआ है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी रेस्ट है, यानी 0, क्योंकि उसने फ्रॉम रेस्ट मोशन शुरू करा अपना। इतना सारा डाटा दिया हुआ है और हमसे पूछता है एस बता। सुनो बच्चे कैसे करना। एवरीबॉडी, आपको +1 में मैंने एक ऑर्फन मेथड सिखाया था, ASTUV, 5 सिंबल लिखे, इसका डाटा भर दो। U इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इससे पूछा क्या है, S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। चार चीजें भरनी चाहिए, तभी मैं इसमें इक्वेशंस पिकअप कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। तो मैंने तो 2 भरी अभी, बाकी कैसे भरूं। तभी मेरे दिमाग में आता है कि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। ओके, क्या इस पार्टिकल का मास दे रखा है हमें, मास तो कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। और इसको हम इधर ही रोकते हैं। अब +2 की नॉलेज देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल, 100 दे ही रखा है उसने, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इसके बराबर भी तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप, तो गैप कितना हो गया बच्चे, तो इसको हम उधर ले जाए। पोटेंशियल डिफरेंस ये देखो, 50 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 40, और ये डी हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने 100 पुट कर दिया, तो डी कितना हो गया, इतना हो गया, 0.4 मीटर आ गया डी। डी ये क्या है, दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो भी हमने दिखाए, ये वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस और दूसरे वाला, उन दोनों के बीच का गैप आ गया डी। ठीक है बेटे, और कुछ नहीं आया हमारे पास, राइट। अब वो पूछता है डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। देखो, एस का फार्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ AT²। अगर हम यू को यूज कर भी ले यहाँ पर, तो ये पहली टर्म 0 आ जाएगी, मानते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन कभी नहीं आ सकता, और टाइम फैक्टर हमें दिया नहीं हुआ। गॉट इट। इसलिए ये फार्मूला हमारा फेल हो गया। गॉट इट। इसका मतलब ये हो गया कि जब पार्टिकल ने ये डी कवर करा, यही हमारा गैप है, और इसकी यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। देखो, तो जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे, देखो हायर पोटेंशियल पर है जो 50 वोल्ट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन मिलेगी, और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ, सॉरी, लेसर पोटेंशियल वाले सरफेस की तरफ, 10 वोल्ट वाले की तरफ भाग जाएगा। तो हमें डी यहीं से निकाल देना है। बाकी की जो चीज दे रखी है वो सारी की सारी कंफ्यूजन के लिए दे रखी है, यानी हमें +1 के फार्मूलों पे जाने की कोशिश जरूरत नहीं, इसी से बन गया हमारा काम। इसको हम तब यूज करते अगर हमें एक्सेलरेशन दिया होता। एक्सेलरेशन ना भी दिया होता तो फोर्स और मास दिया होता, मास भी नहीं दिया हुआ। फोर्स, फोर्स हम निकाल सकते थे, चलो, लेकिन कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये फोर्स को आ सकता था।
और चार्ज का मास नहीं दिया हुआ, बिना मास के हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब डायरेक्ट जितना दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में गैप है उसी को हमारा चार्ज मूव करके कवर कर देगा। तो इसका आंसर बनेगा 0.4। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 ऑन ए 7 है ए, हाँ 7 ही है, यस 7 के अंदर क्या है बेटे, ऑन ए थिन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर along the x-axis with one end at the origin there is uniformly distributed charge per unit length k is equal to इतने। okay, find the work done in displacing this charge from this point to this point। ध्यान से सुनो, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। क्वेश्चन करना, हमारे पास एक रॉड है बच्चे, और बोला हुआ है उसने इस रॉड का जो शुरू वाला किनारा है वहां पर जो पोजीशन है वो है x इक्वल टू 0 मीटर, और ये पूरी रॉड कहता 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है उसकी लेंथ। ओके, फिर क्या कहता, कह रहा है कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, लेकिन कहता आपको ये मैं बता दूं कि यूनिफॉर्मली देयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसकी वैल्यू कितनी है पर यूनिट लेंथ की, इतनी है। देखो आपको पता है इसको बोलते थे हम चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा को हम चार्ज अपॉन लेंथ बोलते थे फर्स्ट चैप्टर में, और इसकी वैल्यू उसने के रूप में दे रखी है और बोल रखा है 10⁻⁹। ये देखो उसने पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया गलती से, उसको पर सेंटीमीटर करो, पर सेंटीमीटर, और आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो, इसका मतलब ये है हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर इतना चार्ज पड़ा है 10⁻⁹, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे फिर इससे इतना पड़ा है, अगले 1 सेंटीमीटर पे फिर से इतना पड़ा है। ये कह रहा है, कहता अब एक हमारे पास चार्ज है टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू उसने बताई है 1000 माइक्रो क्यूलम। 10⁻³ तो यही हो गया, 10⁻⁶ ये हो गया क्यूलम, यानी टेस्ट चार्ज की वैल्यू होगी 10⁻³ क्यूलम। ओके, कहता है इसको जो मूव करवाना है ना आपने, वो 0.44 मीटर से लेकर 1 मीटर में मूव करवाना है। 0.44 जानते हो, वही उसका भी अंडर रूट बच्चे, 0.44 मीटर के अंडर रूट से लेकर आखिरी किनारे तक टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। तो ये उसका पहला डिस्टेंस हो गया, मान लो इसको कहते हैं हम x1 कह देते हैं, यहां को कह देते हैं चलो, और दूसरा हमारा x2 हो गया यहां तक। तो अगर ये हमारा x1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44/100, गॉट इट। तो इसको हम लिख सकते हैं 44 का रूट और नीचे 10, कितना आ गया हमारा, और दूसरा कितना है हमारा यहां तक, तो यहां से यहां तक मूव करवाना है उसको, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा, x2 कितना है 1 मीटर, कौन बच्चा बताएगा कि सर यहां से यहां तक करने में कितना करना पड़ेगा। शाबाश, एनीबॉडी, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे कि इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां मूव करवाना है और वर्क डन करना है, और कितना वर्क करना पड़ेगा। एनीबॉडी,
any body touch बताओ नहीं चार्ज हमारे पास पड़ा जिसको मूव करवाना है लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लीनियर चार्ज डेंसिटी सोचो कैसे निकाल सकते पढ़ो एक बार फिर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद से पढ़ो क्या पता आपको कैच कर जाए पॉइंट देखो बेटा ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना होता है हम पहले ओरिजिन से चार्ज को यहां तक मूव करवा के एक वर्क निकालेंगे फिर ओरिजिन से चार्ज को आखिरी किनारे तक मूव कराएंगे वो वर्क निकालेंगे फिर उन दोनों वर्क्स को आपस में माइनस कर देंगे तो नेचुरली इतने गैप पे जो चार्ज मूव करा उसका वर्क आपको आ जाएगा लेकिन x1 तक मूव करवाने के लिए वर्क कैसे निकालेंगे x1 तक मूव करवाने के लिए वर्क कैसे निकालेंगे प्रैक्टिस करना आप इसकी प्रैक्टिस करके आना नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवाऊंगा राइट सारी एक्सरसाइज कर प्रैक्टिस करके आना सारी एक दिन और ले गया ये तो ठीक है